देखो Hello, dear students. Welcome to Vet Innovation Classes Jaipur. I am Dr. Irfan. I am your veterinary clinical medicine tutor. In the previous lectures, we are done with the most important sections of the veterinary clinical medicine. Now we are left with an important section of veterinary clinical medicine, and among this section it is very important from clinical point of view, and it is very important from your examination point of view, and the name of the section is metabolic disorders or production diseases in case of animals. Metabolic disorders or production disease in case of what we call as animals. Okay, now यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स देंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और इनका नाम है, दूसरा नाम है प्रोडक्शन डिजीजेस. ओके, नाउ सी, यहां पे आपने हर टाइम फील्ड कंडीशंस में डेफिनेटली you might have seen that sometimes you are asked that our cow is suffering from ketosis. So sometimes you are asked that our cow is suffering from milk fever. Sometimes you are asked that our cow is suffering from post-parturient hemoglobinuria. Sometimes you are asked that our goat is suffering from pregnancy toxemia. So sometimes you might be asked that our horse is suffering from Monday morning sickness. Okay, and baby pig disease in case of swine. So Downer cow syndrome and everything. So this section is very important from clinical point of view, and this section is very important from examination point of view, because here the questions will be definitely asked, definitely in every examination questions are asked. So we will go through first some two important tests for this production disease. The first important test is which we call as Compton. What is Compton metabolic profile test? Okay, profile test. And what is what we call as mini profile test? Okay, see, ये दो जो टेस्ट है, एक अच्छे डेयरी फार्म पे, अगर आपका एक इकोनोमाइज्ड एंड एफिशिएंट डेयरी फार्म है, वहां पे आप जब एनिमल का ट्रांजिशन पीरियड होता है, मैंने पहले भी बोल दिया था 2 to 3 weeks बिफोर पार्चुरेशन एंड 2 to 3 weeks आफ्टर पार्चुरेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दे विल रिवॉल्व अराउंड दिस ट्रांजिशन पीरियड. ओके, सो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो कुछ टेस्ट्स करते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट्स करते हैं, ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं. तो पहले ही मान लीजिए अगर कैटल का जो काऊ है हमारी, तो इसका यहां पे पार्चुरेशन होना है, तो इससे पहले लगभग 1 से 2 महीने पहले ये इसका ब्लड सैंपल लेंगे. इस काऊ का ब्लड सैंपल लेने के बाद व्हाट विल दे डू, दे विल गो फॉर CMPT, कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट. तो इसमें से वो इसका देखेंगे, इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, इसका कैल्शियम कितना है, इसका फॉस्फोरस कितना है, इसका नीफा कितना है भाई, इसका मैग्नीशियम कितना है, इसका सोडियम कितना है, इसका एल्ब्यूमिन कितना है. सो मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज parameters they can predict that this cow is going through whether this cow will suffer from any metabolic disorder after parturition or not. तो हम क्या कह सकते हैं, what is Compton metabolic profile test? It is a test
it is a biochemical profile test that is performed in an efficiently organized dairy farm, such as to predict in the future whether the cow is going to suffer from production disease or not. So it is actually the prediction of health states of the dairy animal. It is what we can say, if we define this, it is actually prediction of health status of the animal, okay, health states of the animal, okay. It is actually by examination of it is biochemical, what we call as biochemical profile. Okay, we will see its biochemical and hematological profile. hematology में हम इसका हीमोग्लोबिन देखेंगे, इसका ग्लूकोज देखेंगे, तो उसमें हमें इसमें क्या होगा, तो हम इसका प्रेडिक्ट, इसका हेल्थ कर सकते हैं. ओके, सो हम इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पार्चुरेशन के बाद और लैक्टेशन पीरियड में इसमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा कि नहीं. सो यूज्ड हम लिखेंगे यूज्ड टू प्रेडिक्ट whether our cow is going to suffer from what we call as any production disease, okay, any production disease in after parturition. What is parturition? Process of giving birth to child. इट्स यंग वन को पार्चुरेट करना, बर्थ देना, उसको पार्चुरेशन कहते हैं, और लैक्टेशन पीरियड. तो ये बात आपको समझ में आ गया. कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट क्या है? कुछ नहीं है. कुछ टाइम पहले अगर मान लीजिए आपके घर में गाय है, तो वो गाय प्रेग्नेंट है, आपको पता है कि 2 महीने के बाद इसका पार्चुरेशन डेफिनेटली होना है, तो आप इसको 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी, आप इससे ब्लड सैंपल लेंगे. ब्लड सैंपल को आप टेस्ट करेंगे. इसका बायोकेमिकल में बोलूंगा कौन कौन सा टेस्ट करेंगे हम इसमें, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको आप एक स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्रेडिक्ट दैट वेदर योर काउ विल सफर फ्रॉम एनी प्रोडक्शन डिजीज और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसमें कैल्शियम बहुत कम मिला, फॉर एग्जाम्पल अगर 9 to 11% ये नॉर्मल परसेंटेज है, किसमें, कैल्शियम में कितना होना चाहिए, 9 to 11 इन ब्लड. ओके, अगर आपको मान लीजिए आपने 1 मंथ पहले से ब्लड सैंपल लिया, इसको सीरम निकाला, सीरम को आपने टेस्ट किया फॉर कैल्शियम, तो आपको मिला इसका कैल्शियम लेस देन 5% है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि आफ्टर पार्चुरेशन आवर काउ हैज हायर चांसेस दैट इट मे गो टू द मिल्क फीवर. ओके, सो एट दिस टाइम आप कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे. यू विल टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स सच दैट यू कैन करेक्ट दिस डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, और यू कैन करेक्ट दिस डेफिशिएंसी ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. समझ आ रहा है? एवरीथिंग क्लियर? गुड. नाउ हमें अब ये देखना है कि इस वाले में कौन कौन सा टेस्ट हम करते हैं. भाई साहब आप लिख दीजिए. इसमें हम सबसे पहले इसका ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे. क्या करेंगे? वी विल इन कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट, वी विल चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल. Okay, we will check the blood glucose level. What is the normal blood glucose level of a cow? It is 35 to 55%. 35 to 55%. Okay, कितना है? 35 to 55 mg per dl. Okay, 35 to 55 mg per dl. इतना ग्लूकोज एक काउ में नॉर्मल है. So this is यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मल, और ये लिखेंगे कौन सा हम टेस्ट करने वाले हैं. ओके, नाउ अब दूसरा ये है कि आप उसमें क्या देखेंगे, उसमें आप उसका टोटल प्रोटीन भी देखेंगे, उसका एल्ब्यूमिन भी देखेंगे,
उसका ग्लोबुलिन भी देखेंगे, इसका पीसीवी भी देखेंगे, बट हम इधर क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हमें ब्लड ग्लूकोज मिलेगा, इसमें आपको डेफिनेटली उसका पीसीवी भी देखना है, उसमें आपको उसका एचबी भी देखना है। ओके, आपको पता है जो पीसीवी होता है वो 24 to 46% और हीमोग्लोबिन 8 to 15 mg per dl। ओके, ये 24 to 35% नॉर्मल। ओके, जो फोर्थ है जो आप देखेंगे, जो फोर्थ इसमें एक टेस्ट करेंगे वो है इसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है आप इसमें देखेंगे, इसमें एल्ब्यूमिन कितना है। ओके, एल्ब्यूमिन कितना है। आप इसमें और एक चीज देखेंगे वो ये है कि इसमें सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें आप देखेंगे सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है। ओके, एवरीथिंग डन। नाउ यू कैन आल्सो सी दैट इसमें सीरम, कॉपर और आयरन कितना है। सीरम, कॉपर एंड आयरन कितना है, और एल्ब्यूमिन के साथ साथ इसका आप ग्लोबुलिन भी देखेंगे। सो रिमेंबर दीज टेस्ट्स आर डन इन द कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट। ओके, इसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। एक्चुअली क्या करते हैं हम, अब इधर हम इतना थोड़ा प्रोसीजर बोलेंगे। ब्लड का सैंपल लेंगे, मोस्टली हम 5 ml का सैंपल लेते हैं। उसको हम फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्लूकोज में एस्टिमेशन करना होगा, हम सोडियम फ्लोराइड रिएजेंट रीयूज करेंगे और फाइनली हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं। तो ऐसे ही ये लेबोरेटरिकल एग्जामिनेशन है। हीमोग्लोबिन आप साइलीज मेथड से भी कर सकते हैं, पीसीवी के लिए आप पीसीवी वो चैम्बर आता है उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एल्ब्यूमिन का जिस सीरम इन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, हर एक का अलग अलग एक अपना किट आता है, डायग्नोस्टिक किट, उसकी वजह से आप यूज कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज मिनी प्रोफाइल टेस्ट। what is mini profile test। okay, what is mini profile test। मिनी प्रोफाइल टेस्ट का मतलब ये हुआ, ये एक्चुअली कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट भी है, मगर कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट को एक इंडिविजुअल लेवल पे एक जो ऐसी डेयरी फार्म हो जो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रही हो, उस पे कर देना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको हमने थोड़ा एक आसान एक टेस्ट करा दिया, उसको हम मिनी प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। मिनी प्रोफाइल टेस्ट में हम सिर्फ 3 चीजों का देखते हैं। मिनी प्रोफाइल टेस्ट में हम किस किस चीज का देखते हैं, इसमें थोड़ा आसान कर दिया है। इसमें हम भाई साहब, अगर इसमें हम कार्बोहाइड्रेट कितना है एनिमल की बॉडी में, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी, वी डायग्नोज दैट, वी प्रेडिक्ट दैट विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। ओके, अगर हमें प्रोटीन का देखना है, प्रोटीन कितना है एनिमल बॉडी में, हम मेनली यूज करते हैं एल्ब्यूमिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो अगर आपको पूछा जाएगा कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, तो है ब्लड ग्लूकोज एंड है एल्ब्यूमिन एंड है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और ये जो मिनी प्रोफाइल टेस्ट है, मिनी प्रोफाइल टेस्ट कब किया जाता है, ये कब किया जाता है, ये किया जाता है डन, हम लिखेंगे डन इन 4 to 10 weeks after cowing। okay, after cowing done। now this all about these tests। now one important lecture in here is an important disease we are going to discuss, and the name of the disease is, I will write it here, name of the disease is ketosis, or also known as acetonemia, or sometimes it's also called hypoglycemia। okay, what is ketosis? It's also known as acetonemia, it's also known as hypoglycemia। this disease is very important from clinical point of view as well as from examination point of view। now कीटोसिस का थोड़ा फील लेने के लिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सो डैट
इन द फील्ड कंडीशंस यू विल ट्रीट दीज केसेस, एंड अगर इसमें कोई क्वेश्चन बनता है यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन। सी, अगर हम इसे थोड़ा डिफाइन करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन ruminants, okay, characterized by, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, characterized by किससे कीटोनीमिया, कीटोलक्ष्या, ओके, कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया, कीटोलक्ष्या, hypoglycemia, and poor liver glycogen, okay, done. So this is the definition, and एक अच्छी definition है, इसको आप याद जरूर रख लीजिए इस definition को, कि हम किस चीज को कीटोसिस कहते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किन में, रूमिनेंट्स में है, कैरेक्टराइज्ड बाय, और किस से कैरेक्टराइज होता है, कीटोनीमिया से। जब कीटोन बॉडीज किस में पाई जाएगी, ब्लड में। यहां पे कीटोन बॉडीज कहां पे, ब्लड में, वेरी गुड। कीटोन्यूरिया, यहां पे कीटोन बॉडीज कहां पे, यूरिन में। कीटोलैक्सिया, हियर कीटोन बॉडीज इन मिल्क। सो actually what happens is ketosis, there is acetonemia, there is increased concentration of ketone bodies, and because of that hypoglycemia actually होता है। तो उसकी वजह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन एनिमल्स में, रूमिनेंट्स में देखा गया, जिसमें हमें ये चार चीजें मिलती हैं, कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया, कीटोलैक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड पुअर लिवर ग्लाइकोजन। ओके, डन। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ काउस कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है। तो ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, तो इसको आप याद रख लीजिए। जो एक कैटल है जिसका नाम है गुरनसी, तो ये एक एक्सोटिक डेयरी ब्रीड है, तो ये इट इज मोस्ट ससेप्टेबल। ओके, हर एक कैटल में होगा। अगर उसको मैं बोलूंगा रीजन, अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हुआ तो उसमें भी होगा, मगर अगर ग्रंसी है, अगर पूछा जाएगा, इट इज मोस्ट ससेप्टेबल। नाउ और एक क्वेश्चन इसमें देखा गया है कि ये किस एज पे होता है। ओके, ये किस एज पे होता है, ये होता है 3 to 6 weeks आफ्टर पार्चुरेशन। जब एक गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद 3 to 6 weeks के इंटरवल में इस डिजीज का, द डिजीज ऑफ कीटोसिस, द डिसऑर्डर ऑफ कीटोसिस हैज हैविंग द हाईएस्ट इंसिडेंस। ओके, नाउ अब आप मुझे बोलिए कि इसी पीरियड में why only in this period the incidence of ketosis is very high। so अगर आपने LPM में पढ़ा होगा, LPM लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वहां पे हम एक लेक्चर पढ़ने इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स, और अगर जहां तक मुझे याद है वहां पे हम पढ़ते हैं पीक प्रोडक्शन। तो पीक प्रोडक्शन ऑफ द कैटल, जो काउ है, इसमें पीक प्रोडक्शन कब आता है, वो आता है 3 to 6 weeks ऑफ एज में। ओके, इस 3 to 6 weeks ऑफ एज में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, एंड व्हेन देयर इज हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का होना बहुत ही ज्यादा ये चांसेस है, देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जी बैलेंस this ketosis is having the highest incidence. So remember, everything in clinical medicine is why, and for why there is answer, there is reason, and for the reason we are here at Vet Innovation Classes Jaipur to tell you everything. Wherever we will see why, and definitely here we will get the reason. Okay, so the reason is that why 3 to 6 weeks after parturition, because in case of the LPM, you might have read that
there is a term called economic traits of the animals. In economic traits of the animals definitely आपने एक देखा होगा जिसका नाम है पीक प्रोडक्शन. तो पीक प्रोडक्शन कहां पे होता है? वो 3 to 6 weeks ऑफ आफ्टर दिस पार्चुरेशन होता है. एंड इसी वीक में कीटोसिस सबसे ज्यादा रहता है, बिकॉज इंक्रीज्ड लैक्टेशन की वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है. दैट इज व्हाई this period is considered as the golden period or period of highest incidence of ketosis. Okay, done. Reason cleared. Why in 3 to 6 weeks of this after parturition. Now, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको. क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि आप बता दीजिए, आपको बोला गया ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा क्वेश्चन, कीटोसिस इंसिडेंस ऑफ कीटोसिस इज हाईएस्ट इन. अगर आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया लाइक 3 to 6 weeks आफ्टर पार्चुरेशन, 10 weeks आफ्टर पार्चुरेशन, तो मैंने वो क्लियर कर दिया. मगर अब भाई साहब अगर आपको बोल दिया क्या फर्स्ट लैक्टेशन में होगा, क्या सेकंड लैक्टेशन में होगा, क्या थर्ड लैक्टेशन में होगा, क्या फोर्थ लैक्टेशन में होगा, तो यू शुड नो द आंसर. द कीटोसिस इज हैविंग द हाईएस्ट इंसिडेंस इन द थर्ड लैक्टेशन ऑफ काउ. ओके, जब वो थर्ड लैक्टेशन में आ जाती है, मतलब कि दैट इज प्रोबेबली द थर्ड पार्चुरेशन जब होगा, तो वहां पे हम ये कहेंगे कि कीटोसिस is having highest incidence in third lactation. Okay, these are the general, this is all the some general points जो आपके क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आपको ये बातें याद रखनी है. नाउ मैंने पहले ही बोल दिया, दिस इज एक्चुअली ए डिजीज ऑफ रूमिनेंट्स. और जब हम डिफाइन कर रहे थे व्हाट इज कीटोसिस, तो कीटोसिस में मैंने बोल दिया कि ये 3 चीजें आप याद रख लीजिए. कीटोनीमिया होता है, कीटोन्यूरिया होता है, कीटोलेक्सिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, पुअर लिवर ग्लाइकोजन होता है. वो हम हर एक चीज का आंसर बोल देंगे. तो यहां पे मगर मैंने एक चीज बोला था रूमिनेंट्स में, और रूमिनेंट्स में मैंने आपको एक चीज भी बोला कि रूमिनेंट्स में क्या होगा, जो अगर पूछा जाएगा जो ग्रंथि है तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है. तो ये बात, और एक बात याद रखें, जो हाई यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, हाई यील्डिंग एनिमल्स उनमें ज्यादा होता है. हाई यील्डिंग एनिमल्स हैव हायर चांसेस ऑफ occurrence of ketosis. Okay, now what is important in ketosis? You have to understand the pathogenesis of ketosis. In order to understand the pathogenesis of ketosis, you should know the classification of ketosis, कि किस ketosis को हम primary ketosis कहेंगे, किस ketosis को हम secondary ketosis कहेंगे, किस वाली ketosis को हम borderline ketosis कहेंगे, किस वाली ketosis को हम nervous ketosis कहेंगे, किस वाली ketosis को हम complicated ketosis कहेंगे. मगर उससे पहले हम पैथोजेनेसिस या इटियोपैथोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं वो देख लेते हैं. तो इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कीटोसिस. ओके, पहले हम ये देखते हैं. देखिए, मैं एक यहां पे आपको एक हेडलाइन लिखता हूं. हेडलाइन ये है, हेडलाइन इज लाइक दिस. Headline is like this. यहां पे हम लिखते हैं कीटोसिस. अब बेसिकली कीटोसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए यू जस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर कीटोसिस को होना है, 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है.
तो वो तीन चीजें डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन में पूछी गई है, तो हम आपको वो तीन चीजें डेफिनेटली यहां पे बोल देंगे। तो सबसे पहले हम इन तीन, ये जो थ्री थिंग्स है, थ्री बेसिक कॉज ऑफ कीटोसिस है, दीज फॉर्म द थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ कीटोसिस। तो इनको हम अलग अलग से देखते हैं बाद में। पहले आप याद रख लीजिए, अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हुआ, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हुआ, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हुआ, तो क्या होगा भाई साहब, तो कीटोसिस का होना जरूरी है। ओके, क्या होगा अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हुआ, तो कीटोसिस का होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड इज, अगर इम्परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ, ये भी पूछा गया था, इम्परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नीफा होगा, तो तब भी क्या होगा भाई साहब, कीटोसिस होगा। व्हाट इज नीफा? नीफा आर द नॉन एस्टरफाइड फैटी एसिड्स। ओके, व्हाट इज नीफा? नीफा इज अ नॉन एस्टरफाइड फैटी एसिड। तो इनका होना बहुत ही जरूरी है। नाउ अगर अब तीसरा ये है, अगर ग्लूकोज की नॉन अवेलेबिलिटी हो गई, तो भाई साहब ये कीटोसिस का होना बहुत ही ज्यादा क्या है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये दो तीन चीजें हैं, डायरेक्टली में आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगी कि फॉर द ऑकरेंस ऑफ द कीटोसिस which of the following this disorder or cause is very important. The first one is negative energy balance, the second one is imperfect utilization of NEFA, the third one is glucose non availability. Okay, now देख लीजिए इधर, etiopathogenesis. ओके, नाउ सी, एटियोपैथोजेनेसिस में क्या होगा? एटियोपैथोजेनेसिस में क्या होगा? सी, एटियोपैथोजेनेसिस में भाई साहब क्या होगा, देख लीजिए। पहले हम नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल को समझ गए आप भाई साहब कि क्या होता है नॉर्मली क्या होता है, तब जब हम आपका एबनॉर्मल बोल देंगे तो आपको समझ में आएगा। सी, एटियोपैथोजेनेसिस में आम नॉर्मली जो रूमिनेंट्स में 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट होता है। ओके, जो भी डाइट खाते हैं, बिकॉज इनमें ज्यादातर रूमिनेंट्स में जो बिकॉज ऑफ रूमिनेंट फर्मेंटेशन की वजह के लिए आपका 80% कार्बोहाइड्रेट डाइट में होता है। गुड, ये डाइट भाई साहब कहां जाएगा? इट विल गो टू द रुमन। यहां कहां जाएगा? रुमन में। रुमन में क्या होगा? रुमन में फर्मेंटेशन होगा। रुमन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द रुमन? देयर विल बी फर्मेंटेशन बाय रुमिनल माइक्रोब्स। ओके, उस फर्मेंटेशन की वजह से आपने पढ़ा होगा वहां पे वोलाटाइल फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज वोलाटाइल फैटी एसिड। तो किसका प्रोडक्शन होता है? वोलाटाइल फैटी एसिड्स। तो आपने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा होगा वहां पे कितना परसेंट वोलाटाइल फैटी एसिड प्रोडक्शन होता है, वो ऑल आपको पता है। तो यहां पे VFA का प्रोडक्शन होता है। नाउ वोलाटाइल फैटी एसिड्स किस टाइप के देखे गए हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोलाटाइल फैटी एसिड जो रूमन में प्रोड्यूस होते हैं। वन इज एसिटेट, second is butyric acid, acetic acid, or second is butyric acid, the third one is propionic acid। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कितने वोलेटाइल, कितने टाइप्स ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं इन रूमिनेंट्स। एक तो एसिटेट का भी प्रोडक्शन होता है, ब्यूटारिक एसिड का भी प्रोडक्शन होता है, यहां पे लिख देंगे हम ब्यूटारिक एसिड, और एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ओके, ये नॉर्मल है।
ओके, ब्यूटारिक एसिड जो एसिटिक एसिड है और जो ब्यूटारिक एसिड है भाई साहब, एसिटिक एसिड और जो ब्यूटारिक एसिड है, इनको हम कहते हैं कीटोजेनिक, इनको हम कहते हैं कीटोजेनिक वोलाटाइल फैटी एसिड्स। ओके, दीज आर नोन एज कीटोजेनिक वोलाटाइल फैटी एसिड्स। और जो प्रोपियोनिक एसिड है ये ग्लूकोजेनिक होता है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक वोलाटाइल फैटी एसिड। टन एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। और एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड क्या है? दीज आर द ग्लूकोजेनिक, दीज आर द कीटोजेनिक एंड रेस्ट आर द व्हाट वी कॉल एज, दे आर कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज ग्लूकोजेनिक। नाउ एसिटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड जो वोलाटाइल फैटी एसिड है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपको एक बात याद रखनी है, एसिटिक एसिड प्लस ब्यूटारिक एसिड इज टू प्रोपियोनिक एसिड, इनका एक रेशो रूमिनेंट्स में होता है, एक रेशो के साथ इनका प्रोडक्शन रूमिनेंट्स में होता है। तो रिमेंबर द रेशो इज 4:1। ओके, मतलब अगर ये 1 ग्राम का प्रोडक्शन होगा तो इन दोनों का 4 ग्राम का होगा। ओके, सो ये रेशो, ये नॉर्मल रेशो, अगर इस रेशो के बीच में आप रूमन में जो प्रोडक्शन होगा वोलाटाइल फैटी एसिड का, देयर विल बी एवरीथिंग विल बी नॉर्मल ग्लूकोज भी बनेगा, नो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगी। बट अब अगर इस वाले रेशो में चेंज आ गया, इधर दिस रेशो विल डिक्रीज। फॉर एग्जांपल ये बन गया 6:1, तो मीन्स कीटोजेनिक का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ये बन गया फॉर एग्जांपल 3:3, तो मीन्स प्रोपियोनिक एसिड का जिस ग्लूकोजेनिक का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया। तो उसकी वजह से देयर विल बी इम्बैलेंस। व्हेन देयर विल बी इम्बैलेंस, इट विल डेफिनेटली लीड टू द नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, एंड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कीटोसिस। नाउ हियर सी, अगर हम रूमिनेंट को हे एंड साइलेज खिलाते हैं, तो इसमें देखा गया है these have higher tendency to form ketogenic volatile fatty acids, और उनमें से ब्यूटारिक एसिड ज्यादा बन जाता है। जब ब्यूटारिक एसिड ज्यादा बन जाएगा तो उसकी वजह से what will happen, the ratio will change. When the ratio will change, there will be negative energy balance. That's why हमें एक साथ hay और silage नहीं खिलाना चाहिए। With hay or silage you should also give some fiber, give some roughage, okay, so that जिसको हम कहते हैं what we call balanced ration. Okay, done. So जिसकी वजह से क्या होगा, when if ketogenic substance given more, for example hay, तो वहां पे ये जो ब्यूटारिक एसिड ज्यादा बनेगा, तो देयर विल बी फाइनली, मैं आपको बोलूंगा कि ब्यूटारिक दिस ब्यूटारिक एसिड की वजह से कैसे कीटोसिस होगा। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो इसकी वजह से भी कीटोसिस होता है। और याद रखिए, इस टाइप ऑफ कीटोसिस को हम क्या नाम देते हैं? इस टाइप ऑफ कीटोसिस को हम कीटोजेनिक कीटोसिस कहते हैं, और एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस। मतलब क्या मतलब हो गया इस वाले जो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हमने हे और साइलेज एक नॉर्मल रेशो 4:1, देयर इज नो नॉर्मल रेशो बिटवीन कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक these volatile fatty acids. If this ratio is disturbed, for example when we go for excessive feeding of hay and silage, especially the silage, there is increased production of the butyric acid. What does that mean? There is the increase of these ketogenic volatile fatty acids. Finally जब increased volatile fatty acids का प्रोडक्शन होगा, फाइनली वहां पे डिरेंजमेंट ऑफ द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा, एंड देयर विल बी कीटोसिस, एंड दिस टाइप ऑफ कीटोसिस इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज elementary और digestive और ketogenic ketosis. So what is ketogenic ketosis? The ketogenesis ketosis nothing, they are increased production of what we call as ketogenic volatile fatty acids. Now done. Now so this is regarding what we call as, this is regarding this. Now
अब आप भाई साहब एक चीज याद रख लीजिए, अगर हम इस जो प्रोपियोनिक एसिड हमें वहां पे बना था, जो प्रोपियोनिक एसिड हमें यहां पे बना था, ये प्रोपियोनिक एसिड का ये काम है, द वर्क ऑफ दिस प्रोपियोनिक एसिड इज दैट it will lead to the formation of glucose. Okay, 50% of glucose जो ruminant की बॉडी में बनता है वो प्रोपियोनिक एसिड से बनता है, because this propionic acid will go to the ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ये क्या करता है, वहां फाइनली नाउ 50% ऑफ ग्लूकोज कहां, रूमिनेंट को कहां से आएगा, फ्रॉम प्रोपेनिक एसिड, मीन इसकी वोलेटाइल फैटी एसिड से, और जो 50% बाकी बचा ग्लूकोज वो कहां से आता है भाई साहब, वो आता है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड से, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड से, गुड, और कहां से आ जाता है, लैक्टेट से आ जाता है। आप मुझे बोल दीजिए कि ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड कौन कौन सा है, न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, आप मुझे बोल दीजिए कि ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड कौन कौन सा है, तो ये कहां से आता है, लैक्टेट से आता है, और ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड और ग्लाइसरॉल से आता है। ओके, ग्लाइसरॉल से आता है। ग्लूकोजेनिक आप याद रखिए, लाइक वैलिन है, सीरीन है। ओके, दीज आर द ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा। सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। क्या कहां पे इसको बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, ब्यूटारिक एसिड बन गया, प्रोपेन एसिटिक एसिड से फाइनली मिल्क फैट बनेगा, आपको ये पता है मिल्क फैट बनेगा। और आपने न्यूट्रिशन में ये भी पढ़ा होगा, अगर फाइबर ज्यादा खिलाएंगे तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अगर कंसंट्रेट ज्यादा खिलाएंगे तो प्रोपियोनिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। असल में एक रेशो रहता है इसमें, एसिटिक एसिड इज टू प्रोपेनिक एसिड इज ब्यूटारिक एसिड, इसका एक रेशो रहता है, वो आप देख लेना। उस रेशो को अगर क्रूड फाइबर ज्यादा खिलाएंगे तो एसिटिक एसिड का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, अगर कंसंट्रेट खिलाते हैं तो प्रोपेनिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इस रेशो को देख लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट दिस लेक्चर, इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज नॉर्मल। नाउ क्या होगा, हमने यहां पे देखा कि अगर हमने इस रेशो को चेंज कर दिया तो ये टाइप ऑफ कीटोस होगा। तो नॉर्मली ये नॉर्मल था, अब एबनॉर्मल में होगा क्या, एबनॉर्मल में ये होगा कि अगर अब क्या होगा, अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गई, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब एनिमल में कोई डिजीज हो गया या एनिमल में कोई और कंडीशन होगी, एनिमल अच्छे से नहीं खा रहा, उसको 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, क्योंकि 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द नॉर्मल रेशो ऑफ कीटोजेनिक इज टू व्हाट वी कॉल एज ग्लूकोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड का रेशो मेंटेन करने के लिए वो नॉर्मल है। अब मान लीजिए एनिमल नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, उसके बेसिस पे भी हमें क्लासिफिकेशन देखना है, व्हाट इज प्राइमरी कीटोसिस, व्हाट इज सेकेंडरी कीटोसिस। इन शॉर्ट देख लीजिए, देयर इज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इन द एनिमल। व्हेन देयर इज नेगेटिव एनर्जी इन द एनिमल को वोलेटाइल फैटी एसिड्स नहीं मिल रहे हैं, तो एबनॉर्मल में क्या होगा, एबनॉर्मल हम देखेंगे, एबनॉर्मल में व्हेन देयर इज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, व्हाट विल हैपन, तो वोलेटाइल फैट आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा रूमिनेंट के रूमन में कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा, तो फाइनली रूमिनेंट को तो ग्लूकोज चाहिए, रूमिनेंट को तो एनर्जी चाहिए, तो रूमिनेंट विल शिफ्ट टू व्हाट वी कॉल एज फ्री फैटी एसिड प्रोडक्शन। यानी कि एडिपोज टिश्यूज से क्या होगा, फ्री फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, लाइक फ्री फैट एसिड्स or released from the triglycerides in adipose tissues. Okay, कहां से आएंगे फ्री फैटी एसिड्स, फ्रॉम एडिपोज टिश्यू से। नाउ इससे क्या होगा, इससे होगा कि जब ये फ्री फैटी एसिड टिश्यू से निकलेगा, ये पहुंच जाएगा कहां भाई साहब, ब्लड में। ओके, ब्लड में ये एल्ब्यूमिन के साथ, ये बायोकेमिस्ट्री का बात है, एल्ब्यूमिन के साथ ज्वाइन होगा। जब एल्ब्यूमिन के साथ ज्वाइन होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये कहां जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड में इसमें क्या होता, वंस फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कहां पहुंच जाएंगे,
ये कहां पहुंच जाएंगे, एल्ब्यूमिन इसको थ्रू ब्लड, बिकॉज ब्लड में एज सच फैटी एसिड नहीं रहता, एल्ब्यूमिन का होना बहुत जरूरी है। इट विल लीड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पे पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और यहां पे इसका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होगा, एंड व्हेन देयर इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, there is the production of what we call as the main culprit of this disease, and the main culprit is the ketone bodies। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बॉडीज बन जाएगी। तो कीटोन बॉडीज 3 टाइप्स की बन जाती है। एक तो होता है एसिटोएसिटेट, एक तो होता है एसीटोन, ओके, एक तो होता है BHBA, दैट इज ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। और रूमिनेंट्स में और एक कीटोन बॉडी का याद रखिए, आइसोप्रोपेनॉल, और इट इज मेनली जो प्रेगनेंसी टॉक्स में पढ़ेंगे वहां पे, तो क्या बन जाता है, आइसोप्रोपेनॉल, ओके। सो ये कीटोन बॉडीज आप देख लीजिए, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इन द एनिमल इज नॉट ईटिंग, व्हेन द एनिमल इज नॉट ईटिंग ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज, आई विल टेल यू द कॉजेज, ड्यू टू द डिफरेंट कॉजेज, वहां पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी द शिफ्ट, एनिमल नीड्स एनर्जी, एनिमल नीड्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, सो देयर विल बी shift will be from free fatty acids are released from the triglycerides in the adipose tissue. These will combine with the albumin in the blood, and they will reach to the mitochondria. In the mitochondria there will be fatty oxidation of fatty acids, and when there will be fatty oxidation of fatty acids, there will, instead of the formation of glucose, there will be the formation of ketone bodies. And what are the 3 ketone bodies? Acetoacetate, acetone, and BHBA, beta hydroxybutyric acid. So when these accumulate in the body, when these accumulate in the blood, that condition is known as ketosis। और कभी कभार ये मिल्क में भी आ जाएंगी, और कभी कभार जब केटोसिस होगा तो यूरिन में भी आ जाएंगी, एंड मिल्क में भी आ जाएंगी, यूरिन में भी आ जाएंगी, और दे विल आल्सो कम इन द ब्लड, और उसी को हम कहते हैं कीटोनीमिया, कीटोलेक्सिया, कीटोन्यूरिया। ओके, डन। now what is important here is one more important thing is that जब एक कीटोसिस होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हुआ, वो मैंने बोल दिया। नाउ और एक चीज इंपॉर्टेंट है कीटोसिस में, वो ये है, अगर हम कीटोसिस का क्लासिफिकेशन देखें, इफ वी गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोसिस, तो याद रख लीजिए कीटोसिस में उससे पहले हम एक चीज देख लेंगे कि कीटोसिस का और एक कॉज है। ये तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मैंने बोल दिया कि इसकी वजह से फाइनली कैसे कीटोन बॉडीज बन जाएगी, बट मैंने जब हम कीटोसिस का मैंने चार्ट बनाया था ये वाला, तो ये दिस इज डन कि हाउ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस विल लीड टू द कीटोसिस। नाउ मैंने यहां पे बोल दिया था इम्परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नीफा, तो इसकी वजह से कैसे कीटोसिस होगा, बिकॉज नीफा आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कीटोसिस। सी imperfect utilization of नीफा, मतलब क्या हुआ देख लिए। अगर यहां पे हम ऐसे करेंगे, दिस इज नीफा, ओके, जो बॉडी में बनते हैं। अगर नीफा का ऑक्सीडेशन हुआ, अगर नीफा के इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो देख लेंगे क्या होगा। अगर नीफा का भाई साहब, अगर नीफा का एस्टरिफिकेशन होगा, तो हम देख लेंगे क्या होगा, ओके। अगर नीफा का ऑक्सीडेशन हुआ, तो डेफिनेटली देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज कीटोन बॉडीज। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कीटोन बॉडीज बनेगी। क्या होगा, अगर नीफा में इम्परफेक्ट एस्टर यानी कि एस्टरिफिकेशन होगा, तो वहां पे कीटोन बॉडीज बनेंगी। तो यहां पे कीटोन बॉडीज यानी कि यहां पे कीटोसिस होगा, और अगर एस्टरिफिकेशन हुआ तो यहां पे फैटी लिवर होगा। मतलब
फैटी लिवर, ये आप याद रख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहां पे कीटोन बॉडीज बनेगी बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ नीफा, कीटोन बॉडीज। अगर एस्टरिफिकेशन होगा तो यहां पे ट्राइग्लाइसराइड्स बनेंगे, तो सो व्हेन दे एक्युमुलेट इन द लिवर देयर विल बी द फैटी लिवर डिजीज। नाउ सी हाउ नीफा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ नीफा लीड्स टू, तो आपको नीचे दिया होगा कीटोसिस भी, फैटी लिवर भी। सो रिमेंबर व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ नीफा देयर विल बी कीटोसिस बिकॉज देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज, एंड व्हेन देयर इज एस्टरिफिकेशन ऑफ नीफा देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ फैटी लिवर डिजीज। ओके, नाउ नाउ इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो इंपॉर्टेंट इसमें ये है, यहां पे जो कीटोन बॉडी बनता है एक्चुअली वो ऑक्सैलो एसीटेट है भाई साहब, ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, नाउ दिस इज व्हाई नीफा इज इंपॉर्टेंट फॉर द इम्परफेक्ट जो यूटिलाइजेशन ऑफ नीफा है, उसकी वजह से कैसे कीटोसिस होता है, बिकॉज व्हेन द नीफा अंडरगोज द ऑक्सीडेशन देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ अ कीटोन बॉडी एंड दैट कीटोन बॉडी इज ऑक्सलोएसीटेट, और देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कीटोन बॉडीज and there is the production of ketosis. When there is the esterification of NEFA, and esterification of NEFA leads to the production of triglycerides, and there will not be ketosis, there will be fatty liver or hepatic lipidosis. तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे हेपेटिक लिपिडोसिस होगा और कहां पे कीटोसिस होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पे अगर नीफा का ऑक्सीडेशन होगा और अगर नीफा का व्हाट वी कॉल एज एस्टरिफिकेशन होगा। ओके, नाउ सी वी हैव टू सी नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोसिस। नाउ वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोसिस। सी, अगर हम क्लासिफिकेशन एक दी थी, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था चिटिक की बेसिस पे अगर जो इसने क्लासिफिकेशन किया था कीटोसिस का, हम उसको देख लेंगे। तो इसने सबसे पहले कौन सा कंडीशन दिया था, वो था बैड सीजन कीटोसिस, दूसरा था गुड सीजन कीटोसिस। ओके, बैड सीजन कीटोसिस, गुड सीजन कीटोसिस। बैड सीजन को हम कहते हैं स्टार्वेशन कीटोसिस भी ऑल्सो, और स्टार्वेशन कीटोसिस ऑल्सो, और स्टार्वेशन कीटोसिस। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वेल फेड कीटोसिस। ओके, और इसमें है और एक जो इसका टाइप है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन थी, वो था प्रेमिनेंट सेकंड। नाउ व्हाट इज बैड सीजन कीटोसिस और स्टार्वेशन कीटोसिस? इट इज, नाम ही बोल रहा है भाई, स्टार्वेशन मतलब देयर इज एनोरेक्सिया, एनिमल गोज इन द एनोरेक्सिया, सो रेस्ट द स्टोरी यू नो। whenever there is anorexia there is negative energy balance and there will be finally ketosis, the story you know how there is ketosis. Okay, because why bad season? Because in winter we know that हम animals को proper nutrition नहीं कर पाते हैं because of the scarcity of the fooders, due to which this has been called bad season ketosis. Now what is this? यहाँ पे एनिमल को हम अच्छे से खा भी रहे हैं, उनको खिला भी रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हम एनिमल को, तब भी एनिमल में कीटोसिस हो रहा है। कीटोसिस मैंने बोला नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से, फॉर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस एनोरेक्सिया इज वन ऑफ द कॉज, एंड सो वहां पे क्या होगा, कीटोसिस। बट इन गुड सीजन कीटोसिस और वेल फेड कीटोसिस, रिमेंबर हियर एवरीथिंग इज नॉर्मल, न्यूट्रिशन इज नॉर्मल, ओके, सीजन इज नॉर्मल, अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर्स इज नॉर्मल, even after that there is the ketosis. So remember why, यहां पे एक चीज होगा, यहां पे प्रोडक्शन जो एनिमल का होगा, जो मिल्क यील्ड एनिमल का होगा, एंड जो मेटाबॉलिज्म का जो मैकेनिज्म है, जो बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितना एनिमल प्रोड्यूस करेगा बॉडी इस मिल्क को,
उतनी ज्यादा जो एनर्जी उसको चाहिए ताकि एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। कांस्टेंट एक स्टेट जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं वो मेंटेन रहे। अब अगर इस वाले जो ये इक्वेशन है प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म में जो इक्वेशन रहता है, if there is what we call as if there is imbalance, मान लीजिए if production is very very high, if production is very very high, मतलब जो कौ है वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है मगर यहां से उसका मेटाबॉलिज्म वीक है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वीक है, तो आप को सीधे समझ में आएगा वो दूध ज्यादा देगी, वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, मगर प्रोडक्शन के लिए एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होना चाहिए। व्हेन देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली दिस विल लीड टू द व्हाट वी कॉल एज कीटोसिस। क्यों कीटोसिस होगा? बिकॉज यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोडक्शन की वजह से लॉस ऑफ जो उसका ग्लूकोज था वो सारा ये यूज करेगा फॉर प्रोडक्शन के लिए एंड लेस विल बी अवेलेबल, सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड्स का बनना, एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होना, ब्लड में जाना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड फाइनली कीटोन बॉडीज का बनना। सो दिस इज दिस। नाउ वन मोर जो इसमें है वो ये है, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी कीटोसिस, what is primary ketosis and what is secondary ketosis। प्राइमरी कीटोसिस और सेकेंडरी कीटोसिस क्या होता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। सी प्राइमरी कीटोसिस में यहां पे जो एनोरेक्सिया होगा या स्टारवेशन होगी, ये क्यों होगी? इट विल बी बिकॉज इसमें कुछ रीजन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, एनिमल नहीं खा रहा है, इसको हम कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड कीटोसिस। क्या कहते हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड कीटोसिस। ओके, ये होता है फ्रॉम 10 days to 8 weeks आफ्टर काविंग। नॉर्मली जब आफ्टर काविंग हो जाता है इसको हम कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड कीटोसिस। अनकॉम्प्लिकेटेड कीटोसिस मतलब जब फीड नहीं खाएगा एनिमल, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एनोरेक्टिक एनिमल है, ये कुछ नहीं खा रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट वोलेटाइल फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आएगा एनिमल में, एंड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मैंने बोला कि हाउ इट दैट लीड्स टू द कीटोसिस। नाउ मसला ये है जो सेकेंडरी कीटोसिस है, इसमें जो काज होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का वो एक्चुअली कोई डिजीज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ ए डिजीज लाइक मेट्राइट्स और ट्रॉमेटिक रेडिकुलोपेरिटोनाइट्स, हियर देयर द एनिमल गोज ऑफ फेड। यहां पे भी स्टारवेशन होगा, मगर जो यहां पे स्टारवेशन होगा, जो आप फीडिंग यहां पे होगी, दैट विल बी बिकॉज ऑफ सम डिजीज। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सेकेंडरी कीटोसिस। ओके, फॉर एग्जांपल किस किस कंडीशन में ये होता है, लाइक इट ऑकर्स इन हाइपोकैल्सीमिया, इट ऑकर्स इन पेन, इट ऑकर्स इन हाइपोकैल्सीमिया। ओके, इट ऑकर्स इन metrites, okay, it occurs in metrites, it occurs in peritonites, it occurs in reticulates, it occurs in peritonites, it occurs in reticulates, it occurs in abomasal displacement, and many more conditions. Wherever you find that there is anorexia because of that condition, and at that time we call as secondary ketosis. Now एक और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपने पढ़ा होगा कि जो सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ कीटोसिस है, सब क्लिनिकल कीटोसिस क्या होता है, यहां पे एक नर्वस फॉर्म, आप पहले याद रखिए, नर्वस कीटोसिस भी होता है, नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस भी होता है। और ये कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि नर्वस साइंस क्यों आते हैं कीटोसिस में, ये लेट स्टेज पे, एडवांस स्टेज पे होता है, बिकॉज देयर इज एक्सट्रीम हाइपोग्लाइसीमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से नर्वस फॉर्म कीटोसिस में आते हैं। Now what's important here is that
सब क्लिनिकल कीटोसिस को थोड़ा देख लेंगे। सब क्लिनिकल कीटोसिस, सब क्लिनिकल कीटोसिस। Subclinical ketosis means there will be ketosis but no clinical signs, no clinical signs। मतलब कीटोसिस तो होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज डेफिनेटली बॉडी में होंगी, बट द एनिमल विल नॉट शो क्लिनिकल साइन। सो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा नो क्लिनिकल साइंस बट कीटोन बॉडीज will be present in what we call as urine, blood and milk। अगर आप इन तीनों का टेस्ट करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो हम बोलेंगे रोथरास टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा, बट देयर विल बी नो क्लिनिकल साइन। ओके, आपके पास केस आ रहा है, कोई क्लिनिकल साइन नहीं है, वो खा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, मगर उसका आप क्या करते हैं, उसका आप जब रोथरास टेस्ट करते हैं, रोथरास टेस्ट में आपको वो पॉजिटिव आता है, एंड यू विल से दैट दिस इज अ केस ऑफ सब क्लिनिकल कीटोसिस। सो दिस इज अ केस ऑफ सब क्लिनिकल कीटोसिस। बट सब क्लिनिकल कीटोसिस में 3 टाइप्स है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सब क्लिनिकल कीटोसिस ऑफ 3 टाइप्स। वन इज टाइप 1, ओके, द सेकंड इज टाइप 2, ओके, द सेकंड इज टाइप 3। टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। यहां पे हमें इनका डिफरेंशिएशन देखना बहुत ही जरूरी है, तो आप लिख दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री कीटोजेनेसिस, हेपेटिक कीटोजेनेसिस। टाइप 1 में हम पहले यहां लिखेंगे एलिमेंट्री कीटोजेनेसिस, ओके। सेकंड हम लिखेंगे हेपेटिक कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस, ओके। द थर्ड में हम लिखेंगे, व्हाट इज द थर्ड? दैट इज मेमोरी कीटोजेनेसिस, ओके। द फोर्थ इज व्हाट वी कॉल एज BHBA। नाउ अब हमें देखना है कि टाइप 1 जो सब क्लिनिकल कीटोसिस होता है, क्या वहां पे कीटोन बॉडीज एलिमेंट्री ट्रैक्ट में बनते हैं, यानी कि रूमिनेंट में बनते हैं? क्या वहां पे हेपेटिक कीटोजेनेसिस होता है? क्या वहां पे मेमोरी कीटोजेनेसिस होता है? क्या वहां पे BHBA प्रेजेंट होता है? जो टाइप 1 है, टाइप 1 में आप याद रख लीजिए, इसमें एलिमेंट्री कीटोजेनेसिस इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ओके। एंड यहां पे जो हेपेटिक कीटोजेनेसिस है इसमें नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है, ओके। एंड जो मेमोरी कीटोजेनेसिस है यहां पे नहीं होता है, यहां पे नहीं होता है और यहां पे होता है। व्हाट डज दिस मीन? इट मींस दैट टाइप 1 सब क्लिनिकल कीटोसिस में अगर आपको ये वाला नो क्लिनिकल साइन मिला, ये सब मिला, और अगर वो टाइप 1 का होगा, टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 में कीटोन बॉडीज इस वाले मैकेनिज्म से बन सकते हैं। तो अगर आपको हेपेटिक कीटोजेनेसिस का देखना है, टाइप 1 में हेपेटिक कीटोजेनेसिस एब्सेंट होता है, और मगर टाइप 2 और टाइप 3 में जो कीटोन बॉडीज बनती है वो हेपेटिक से भी बनती है। मेमोरी कीटोजेनेसिस लाइक मेमोरी ग्लैंड में भी जो कीटोन बॉडीज बनती है लाइक ऑक्सलोएसिटेट, तो यहां पे टाइप 1 और टाइप 2 में वो एब्सेंट है, मगर टाइप 3 में वो प्रेजेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, क्या टाइप 1 में BHBA बनता है? क्या टाइप 2 में BHBA बनता है? क्या टाइप 3 में BHBA बनता है? तो वो हमें देखना है। तो रिमेंबर, इन ऑल द 3 टाइप्स द BHBA इज seen, okay। now one more is important here is क्या एसिटोएसिटेट एसिटेट 3 फॉर्म्स में बनता है कि नहीं, वो भी हम देख लेंगे। क्या एसीटोन 3 फॉर्म्स में बनता है कि नहीं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर, एसिटोएसिटेट इज फॉर्म्ड absent in type 1, present in type 2 and present in type 3. What about acetone? It is absent in type 1, absent in type 2 and present in type 3. So remember this is the classification of subclinical ketosis.
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, why is this important? फर्स्ट केस आपको फील्ड में आएगा, कोई साइन नहीं होगा, जब आप रोथरास टेस्ट करोगे that will be passed at that time you will say that it is a form of subclinical ketosis. And from examination point of view please remember these 3 points. क्या टाइप 1 में BHBA प्रोड्यूस होता है, क्या टाइप 2 में BHBA प्रोड्यूस होता है, क्या टाइप 3 में BHBA प्रोड्यूस होता है. You all have to remember these 3 important points. Good. Now एक और इंपॉर्टेंट हमें एक कंसेप्ट यहां पे समझना है. वो सब कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो कीटोसिस के और कॉजेस हैं वो हम थोड़ा देख लेंगे. सेकंड जो इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं ऑफ कीटोसिस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल एज cortical insufficiency. See, adrenocortical insufficiency में क्या हुआ. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, whenever the animal is in the citrus, जब एनिमल सिट्रस में आएगा, citrus of parturition और citrus of lactation, obviously there will be production of adrenaline और epinephrine बन जाता है. क्या बन जाता है? Epinephrine. Okay, because whenever there is stress in the animal, obviously there will be the production of epinephrine. जब epinephrine बन जाएगा, it will lead to the production of glucogen को convert करेगा किस में? ग्लूकोज को. Okay, epinephrine ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में. आप एक बार एपिनेफ्रिन का थोड़ा फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म देखिए तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में. तो एनिमल में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है तब, देन दिस इज बेनिफिशियल फॉर द एनिमल. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर एपिनेफ्रिन भाई साहब कम हो गया, एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो गई, एपिनेफ्रिन ही कम हो गया, तो ग्लाइकोजन तो कन्वर्ट ग्लूकोज में नहीं होगा एंड इट विल फर्दर एग्रेवेट द हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन इन केस ऑफ एनिमल. सो रिमेंबर, एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी इज आल्सो a cause of what we call as ketosis. Now और एक इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्यों क्या कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल अगर जब सिट्रस होता है, सिट्रस जब होगा, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है भाई साहब, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोन निकलेगा. कॉर्टिसोन एक हार्मोन निकलेगा और कॉर्टिसोन भी क्या करेगा, ये भी भाई साहब यही करेगा. ये क्या करेगा? लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, ये भी ग्लूकोज बनाएगा. कौन? कॉर्टिसोन ग्लूकोज बनाता है फ्रॉम कहां से? फैट एंड प्रोटीन से. और रिमेंबर, आपने इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, व्हेनेवर देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो सी हाउ दिस adrenal gland is important for the maintenance of the glucose level. So whenever there is adrenal cortical insufficiency, whenever there is any defect in the adrenal gland, obviously the glucose metabolism, the glucose production in the ruminant is hampered. So whenever there is glucose production कम हो जाएगा, again that will shift to the beta oxidation of fatty acids, ketone bodies बन जाएगी. So here कीटोसिस के लक्षण देखे जाएंगे, तो कीटोसिस हो सकता है. तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा which one of the following is the cause of ketosis, तो आप बोल दीजिएगा कीटोसिस में कॉज ये भी हो सकता है एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी. नाउ सेकंड ये है भाई साहब, सेकंड ये है अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपोथायराइडिज्म ये भी कभी कभार पूछा जाएगा, क्या हाइपोथायराइडिज्म में कीटोसिस देखा जाएगा कि नहीं. इट्स अ कॉज ऑफ कीटोसिस बिकॉज वी नो दैट द थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है फॉर टू मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट. जब बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए थायराइड हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ गई, थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे, बेसल मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिक रेट है, दैट विल बी हैम्पर्ड. व्हेन दैट विल बी हैम्पर्ड, obviously less glucose will be formed, again shifted to the beta oxidation of fatty acids, again production of ketone bodies, again ketonemia, ketonuria, ketolexia, that is ketoacidosis. Now
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये है कि नॉर्मली अब हम देखेंगे नॉर्मल इसमें ऑल्सो ये याद रख लीजिए कि डेफिशिएंसी ऑफ ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है डेफिशिएंसी ऑफ कोएंजाइम ए, इससे भी कीटोसिस होता है, एंड डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट इससे भी क्या होता है व्हाट वी कॉल एज हो सकता है, बिकॉज जो कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए बिकॉज फैटी एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे क्या होगा, जो फैटी एसिड जो होते हैं इनको जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है तो यहां पे कोएंजाइम यूज होता है। जब कोएंजाइम एब्सेंट होगा तो फैटी एसिड्स कहां पे, जब कोएंजाइम बहुत कम होगा, लेस होगा, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज दे विल गो टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। दैट इज व्हाई दिस कोएंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई कोबाल्ट? बिकॉज कोबाल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12 साइयानोकोबालामीन। और साइयानोकोबालामीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एपिनेफ्रिन की फंक्शन के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया एपिनेफ्रिन होगा तो ग्लूकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। तो इंपॉर्टेंट। नाउ हमें क्लिनिकल पैथोलॉजी देखनी है। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या मिलती है आपको? किस में? कीटोसिस में। कीटोसिस में इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल पैथोलॉजी ये थोड़ा याद रखने के लायक है, इसमें थोड़ा मैकेनिज्म नहीं है, इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा क्लिनिकल पैथोलॉजी आपको कीटोसिस में मिलता है। ओके, नाउ सी क्लिनिकल पैथोलॉजी में सबसे पहले आपको 3 चीजें मिलेगी, वो मैंने बोल दिया। दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया एंड कीटोलेक्सिया। नाउ ब्लड शुगर लेवल, अब सबसे पहला क्लिनिकल पैथोलॉजी में आप देखेंगे ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा? ब्लड शुगर लेवल। ओके, आपको पता है जो ब्लड शुगर लेवल इन यहां से लिखेंगे हम नॉर्मल एनिमल में ब्लड शुगर क्या रहेगा? एंड इन कीटोसिस, अगर कीटोसिस हुआ इस एनिमल का, इसमें ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा? आप देख लीजिए, नॉर्मल जो एनिमल में ब्लड शुगर लेवल रहता है वो होता है 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। वो होता है 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहां पे कीटोसिस में वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, वो डिक्रीज हो जाएगा इन मोस्टली लेस देन 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड और पर DL आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन शॉर्ट ब्लड शुगर लेवल इज रिड्यूस्ड। नाउ another is that ब्लड शुगर लेवल हमने देख लिया। अनदर इज दैट ब्लड कीटोन बॉडीज कितना मिलता है। ब्लड कीटोन बॉडीज का अगर आप टेस्ट करेंगे तो सेकंड आपको देखना है ब्लड कीटोन लेवल, ब्लड कीटोन बॉडीज लेवल। ठीक, सेम वी विल गो फॉर यहां से नॉर्मल में क्या होगा और यहां से कीटोसिस वाले केस में क्या मिलेगा। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको डेफिनेटली याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्जेलो, जो कीटोन बॉडी बनती है ऑक्जेलो एसिटेट, वो कितना होगा नॉर्मल में। सेकंड BHBA कितना होगा? ओके, BHBA कितना होगा नॉर्मल में, एंड एसीटोन कितना होगा बॉडी में, वो हम देखेंगे। सो ऑक्सलो एसिटेट आप लिख दीजिए, एसिटोएसिटिक एसिड इज 0.1 mg, इट इज एसिटोएसिटिक एसिड, नॉट ऑक्सलोएसिटिक एसिड। करेक्ट इट वेयर एवर मैंने ये लिख दिया तो इसको आप लिख दीजिए, इट इज एसिटोएसिटिक एसिड। तो ये कितना होता है नॉर्मल में कितना होगा? इट विल बी 0.1 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, पर 100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मल में कितना होता है एसिटोएसिटिक एसिड? इट इज 0.1 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, एंड BHBA इज 8 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। BHBA इज 8 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड एंड एसीटोन का आप नहीं देखते हैं, एसीटोन हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं फ्री फैटी एसिड्स, वो होते हैं 9 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। कभी कभार आपको ऐसे दिया जाएगा, डरना नहीं है, 8 mg पर DL होगा, तो DL का मतलब होता है 1 DL इज इक्वल टू 100 ml। ओके, 1 DL इज इक्वल टू 100 ml। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 mg
8 mg per dl, okay, or 9 mg per dl. Good. Now see, so this is normal. अब abnormal में क्या होगा, आप मुझे बोल दीजिए, क्या कीटोन बॉडीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज. तो यहां पे अगर हम कीटोसिस केस में देखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे मे इंक्रीज अप कितना, 0.1 से 7 mg पर डीएल भी पाया जाता है. आप देख लीजिए, जब इतना कंसंट्रेशन आएगा किसका, एसिटिक एसिड का, एक कीटोन बॉडी है, तो वी कैन से दैट दिस अ केस ऑफ कीटोसिस. ओके, एंड BHBA can increase to 30 mg, 30 may increase up to 30 mg per dl. Okay, and the free fatty acids can increase to what we said 28 mg per 100 ml. May increase to 28 mg per dl. ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल में क्या होगा, कीटोसिस केस में क्या होगा, ब्लड कीटोन बॉडीज लेवल क्या होगा, और फ्री फैटी एसिड्स क्या होगा, ये आपको डेफिनेटली याद रखना है. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट इज कीटोन बॉडीज इन यूरिन. ओके, कीटोन बॉडीज इन यूरिन. सी दैट इज कीटोन बॉडीज इन यूरिन. इसका हम थोड़ा देख लेंगे. कीटोन बॉडीज इन यूरिन में क्या होता है, आप इतना याद रख लीजिए, नॉर्मली लिटिल और नो कीटोन बॉडीज आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, बट इन कीटोसिस लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन में गो अप टू 500 to 1000 mg per 100 ml ऑफ ब्लड. नॉर्मली अगर आप देखोगे एनिमल में आपको कीटोन बॉडीज यूरिन में नहीं मिलेगी, बट इन केसेस ऑफ हम लिखेंगे नॉर्मली not secreted through urine, but in ketosis cases आप देख लो कि कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, 502. रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 500 to 1000 mg पर dl. भाई साहब, 0 से लेके 0 एब्सेंट इन केस ऑफ द नॉर्मल एनिमल्स एंड इंक्रीजेस टू 500 to 1000 mg per dl. At that time, this is absolutely 100% that it's a case of ketosis. Okay, it's a case of ketosis. देखिए, कीटोसिस को डायग्नोज करने के लिए फील्ड कंडीशंस में आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा. फर्स्ट, एज क्या है एनिमल की. सेकंड, किस स्टेज पे हो रहा है, बिकॉज कीटोसिस ऑब्वियसली जिस पीक पीरियड के अराउंड ही होगा. ओके, इस बारे में आप अगर हाई यील्डिंग एनिमल है, 3 to 6 वीक्स ऑफ लैक्टेशन है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है एनिमल में, ओके, एंड हम कुछ क्लिनिकल साइंस बोलेंगे आपको, उसके बेसिस पे आप, और अगर फाइनली यू कंफर्म दैट विद द हेल्प ऑफ प्रोथ लॉस टेस्ट, अगर ऐसा केस मिला, दैट इज अ केस ऑफ कीटोसिस. Now, what is important here is that यहां पे कीटोसिस में क्या होगा, कीटोसिस में जो हाइपोकैल्सीमिक कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर, नॉर्मल एनिमल में कैल्शियम कितना होता है भाई, कैल्शियम होता है 9 to 11%. ओके, कितना होता है, 9 to 11%, और यानी कि mg. Okay, 9 to 11%. Now, what happens in ketosis? Remember, ketosis में hypocalcemia होगा. Ketosis में क्या होगा? There will be hypocalcemia. Hypocalcemia क्यों होगा? Hypocalcemia. Why there will be hypocalcemia? Because when ketone bodies are excreted through urine, in order to maintain the acid-base balance of urine, calcium is secreted. Okay.
due to why there is significant fall of serum calcium level, it is due to the due to increased loss of base in the urine to compensate for the acidosis. So due to increased loss of base, calcium is excreted through urine to compensate acidosis. बिकॉज कीटोन बॉडी जब आएगा तो ऑब्वियसली जो यूरिन का पीएच है वो डिक्रीज होगा, एसिडिक तरफ क्या आएगा. सो बिकॉज ऑफ इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट कैल्शियम का रिलीज होना थ्रू यूरिन हो जाता है, यानी कि बट इन कीटोसिस देयर इज सिग्निफिकेंट फॉल इन सीरम कैल्शियम लेवल प्रोबेबली ड्यू टू द इंक्रीज्ड लॉस ऑफ बेस इन द यूरिन टू कंपनसेट फॉर द एसिडोसिस. ओके, देयर इज इंक्रीज्ड लॉस ऑफ increased loss of base in the urine. there is increased loss of base, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए increased loss of base in the urine. okay, done. now serum magnesium level क्या होगा इस कीटोसिस में? there is increased loss of base in the urine, ऐसे आप लिख दीजिए increase loss of base in the urine to compensate for acidosis. now ये कैल्शियम मीन्स कि आपको कीटोसिस के साथ हाइपोकैल्सीमिया भी मिलेगा, ये बात याद रख लीजिए. पूछा जाएगा कि कीटोसिस में हाइपरकैल्सीमिया होता है कि हाइपोकैल्सीमिया. आपने फील्ड में एक केस अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो ये केस जरूर आता है, कीटोसिस और मिल्क फीवर का केस भी आ सकता है, और कभी कभार मेट्राइटिस का भी केस आता है. मिल्क फीवर मेट्राइटिस कम्प्लेक्स भी इसको या कीटोसिस कम्प्लेक्स भी कहते हैं. दैट इज वाई बिकॉज अगर कीटोसिस होगा तो डेफिनेटली हाइपोकैल्सीमिया होता ही है. नाउ what about magnesium? because in ketosis remember there is hypomagnesemia. तो ये बात भी आप याद रख लीजिए, there is decreased magnesium भी serum magnesium पाया जाता है. now अब आप मुझे बोल दीजिए कि जो हम बायोकेमिकल टेस्ट्स करते हैं किसके लिए? कीटोसिस के लिए. कीटोसिस का जो हम थोड़ा सा हेमाटोबायोलॉजिकल चेंज देखेंगे, इसमें इसनोफिलिया मिलता है, लिम्बोसाइटोसिस मिलता है एंड न्यूट्रोपिनिया मिलता है. ओके, इसनोफिलिया आप अगर हेमाटोलॉजिकल भी याद रखेंगे, हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स, इसमें आपको एसिनोफिलिया मिलेगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इसिनोफिल्स. लिम्फोसाइटोसिस भी मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस एंड न्यूट्रोपिनिया होता है इसमें, यानी कि न्यूट्रोफिल्स बहुत कम पड़ जाती हैं बॉडी में. ओके, न्यूट्रोपिनिया न्यूट्रोफिल्स बहुत कम पड़ जाती हैं. नाउ अगर हम इसमें जो टेस्ट करते हैं, नाउ रिमेंबर अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं इस कीटोसिस का बायोकेमिकल टेस्ट, तो यू नो द बायोकेमिकल टेस्ट वो आप लेबोरेटरी में डेफिनेटली करे होंगे, तो दैट इज द रोथेरॉस टेस्ट. मैं बस यहाँ पे नाम बोलूंगा, जो आपको करना है वो आप देख लेंगे, आपने इसमें लैब में किया होगा. इसमें हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसमें हम 3 रिएजेंट्स लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. ओके, उनको हम इस सैंपल के साथ लाइक दैट मेनली यूरिन सैंपल को साथ मिक्स करते हैं, कुछ टाइम के लिए रखते हैं. अगर वहां पे पर्पलिश रिंग बन गया, दिस इज द केस ऑफ कीटोसिस. नाउ कीटोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ कीटोसिस. नाउ इसमें हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कहते हैं उसको व्हाट वी कॉल दैट एज रिप्लेसमेंट थेरेपी. सो जो इसमें जो फ्लूइड हम देते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसमें जो फ्लूइड हम देते हैं, रिमेंबर इट इज 50% डेक्सट्रोज
इंट्रावीनस। सो इंट्रावीनस 50% डेक्सट्रोज इसमें देना बहुत ही जरूरी है, ओके, क्योंकि इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव 50% ऑफ डेक्सट्रोज। एंड इट इज नॉर्मली, आपने देखा होगा फील्ड कंडीशंस में एक फ्लूइड के नाम से आता है जिसका नाम है वोक्ट्रोज, वोक्ट्रोज, ओके। अब प्रैक्टिस करते होंगे आपने रिंटोज, डेक्सट्रोज, वोक्ट्रोज इनके बारे में पढ़ा होगा। नाउ सेकंड इज, आप ग्लाइकोजन के प्रिकर्सर्स भी दे सकते हैं, आप ग्लूकोजन के प्रिकर्सर्स भी दे सकते हैं, जैसे हम प्रोपालीन ग्लाइकॉल देते हैं, आपने प्रोपालीन ग्लाइकॉल भी देखा होगा। ग्लूकोज प्रिकर्सर्स हम देखते हैं, लाइक ग्लूकोज का प्रिकर्सर हम देते हैं इस एनिमल को, प्रिकर्सर्स, इसमें हम प्रोपाइलीन जो ग्लिसरीन आती है, प्रोपालीन ग्लाइकॉल ज्यादा इसमें प्रेफर करते हैं, ओके। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट और एक चीज ये है कि इसमें हम कुछ और ड्रग्स देते हैं, मगर मेन इसका जो थेरेपी है वो यही है कि आप इसमें व्हाट वी कॉल एज, आप इसमें क्या दीजिए, 50% डेक्सट्रोज। अगर इसको हार्मोनल थेरेपी करना होगा, हार्मोनल थेरेपी करना होगा, तो आपने फील्ड कंडीशंस में एक ड्रग तो जरूर दिया होगा, एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। तो यह आपने जरूर दिया होगा, डेक्सा के नाम से एक इंजेक्शन आता है, उसको जरूर दिया होगा। तो बिकॉज डेक्सामेथासोन इंक्रीज करता है ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द बॉडी, सो जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया कम हो जाता है। और बीटामेथासोन इज ऑल्सो गिवन, ओके। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो काम रहता है, हार्मोन्स का काम रहता है, दे रिड्यूस द कीटोन बॉडी फॉर्मेशन बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय मेकिंग ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब इसका ये हुआ, आप डेक्सामेथासोन दीजिए या बीटामेथासोन दीजिए, मगर थोड़ा ध्यान रखिए डेक्सामेथासोन में मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप होता है, ओके। इसमें जो एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप्स, ये बात थोड़ा ध्यान में रख दीजिए। मतलब जो हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो रहते हैं, लाइक यही जो मैंने बोला, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो रहते हैं, इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं कीटोन बॉडी फॉर्मेशन को बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को, एसिटाइल कोएंजाइम को इसका यूटिलाइजेशन जो है, इसका जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइज बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बिकॉज ऑफ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट्स एन एंजाइम, वहां पे कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। अगर हम एसिटाइल कोएंजाइम का यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, मतलब इसका हम वो क्या कहते हैं, इनहिबिशन ही कराएंगे, मतलब इसका एग्जॉशन कराएंगे, कम कराएंगे इसका इफेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जब कम होगा तो वहां पे कीटोन बॉडीज कम बन जाएगी, तो बिकॉज ऑफ दैट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी गिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक नया ड्रग एक है जिसका नाम है ट्रिमसिनोलोन, ट्रिमसिनोलोन एक विटालॉग के नाम से आता है, विटालॉग, ट्रिमसिनोलोन, यही देना चाहिए, ट्रिमसिनोलोन, इसका जो प्रिपरेशन आता है वो है विटालॉग, ओके। दिस आल्सो अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट शुड बी गिवन, इट इज अ वेरी गुड इफेक्ट। नाउ another important thing here, important is that यहां पे हार्मोनल थेरेपी भी हो गया आपका, व्हाट वी कॉल एज, ये रिप्लेसमेंट भी थेरेपी भी हो गया, आप इंसुलिन भी दे सकते हैं, इंसुलिन भी दे सकते हैं आप, और आप एनाबायोटिक स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट जो इसमें है, आपको 50% डेक्सट्रोज जरूरी देना है भाई साहब, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीटोस। नाउ एक इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। आपने देखा होगा क्लोरल हाइड्रेट हम एनिमल्स में देंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ये क्लोरल हाइड्रेट अगर हम एनिमल्स को देंगे, रूमिनेंट्स को देंगे, मेनली क्लोरल हाइड्रेट
क्लोरल हाइड्रेट अगर हम रूमिनेंट्स को परास देते हैं, ये स्टार्च को ब्रेक करवाता है, स्टार्च को ब्रेक करवाता है। जब स्टार्च को ब्रेक करवाता है दैट फाइनली लीड्स द ग्लूकोज प्रोडक्शन। जब ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा एंड देयर विल बी नो हाइपोग्लाइसीमिया। सो in nutshell, you will remember that what is ketosis. Ketosis is nothing, it's a metabolic disorder. Okay, ketosis is a metabolic disorder. इसमें क्या होता है, इसमें आपका what we call as this ketone bodies बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ऑल्सो रिमेंबर दैट जो मैंने आपको डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस कहा था, उसमें उसको हम वेस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। सो रिमेंबर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस ये है कि देयर विल बी लॉस ऑफ बॉडी वेट, कीटोन ऑर्डर फ्रॉम माउथ एंड मिल्क। ओके, देयर मेनली जो कीटोसिस में आपको क्लिनिकल साइन मिलेगा, देयर विल बी इमैसेशन, देयर विल बी इमैसेशन, लॉस ऑफ बॉडी वेट एंड देयर विल बी ड्रॉप इन मिल्क यील्ड। और आपको ओनर जरूर बोलेगा कि मेरी जो गाय है वो क्या करती हैं, वो घास कम खाती हैं और कंसंट्रेट ज्यादा खाती है। और आई विल करेक्ट इट, मैं देखूंगा कि घास कम खाती है कि कंसंट्रेट क्या करती है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा। इतना भी याद रख लीजिए, यहाँ पे इमैसेशन होगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। इमैसेशन जो है, इमैसेशन यहाँ पे होता है डिक्रीज्ड मिल्क यील्ड होता है, और जो उसका ब्रेथ होता है, जो ब्रेथ होगी उस काऊ की, उसमें कीटोन बॉडी स्मेल आएगा, कीटोन बॉडी स्मेल। Okay, so this is all about the ketosis. Hope you understood everything regarding the ketosis and the questions that we asked in the ketosis. So hope you understood everything. In the next lecture we will meet with another important metabolic disorder. Till then, have a good day. Thank you for watching.